So, welcome to the AQ Guide podcast, and I'm your host Ashish Kumar. And in this episode, we are diving deep into everything you need to know to ace the AQ entry test, and with the guidance of Huzaifa Sheikh, who has recently cleared the AQ test and has passed the AQ interview, and he did got the offer letter. So, we'll cover the study strategies, test tips, and the best resources to help you prepare effectively. Whether you are feeling confident or nervous about the test, we have got you covered with all the tips and tricks you'll need. Let's get started and get you one step closer to the success. So, the first question from Zafa is, can you introduce yourself and tell us a little about your academic background? Absolutely. So my name is Zafar Sheikh and I've done ONA levels from Karachi. I've done A levels from the city school and I've recently given the AMDCAT जो कि हुआ था अभी. Since AMDCAT, which everyone knows that was reconducted, so I just recently gave the IBA reconduct. That's good. So, what basically motivated you to apply to AKU? Okay, so basically, the college where I studied, there was a senior who always pushed me to get into AQ. He told me the benefits of getting into AQ. He told me the perks that I might get once I get into AQ. So I got inspired by him, the by the way he studies. So I also wanted to join him in AQ. That's why um, he was the biggest motivation for me to join AQ. So, how did you really prepare for the AKU admission test? Okay, so there are like multiple ways to prepare for AQ. The way I opted was that I first of all covered federal textbook and Punjab textbook. That is a must for every student who wants to ace AQ ka test. He or she should cover these two textbooks first thoroughly. Then he should like the student should um start off with the high yield topics, then come to the low yield topics because mostly uh, if like the student is aware of how the test pattern of AQ is, so that it is 50% of science achievement and 50% of science reasoning section. This means that uh, out of the 50 questions in the science achievement section, इसके अंदर तीन subjects होते हैं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स उसमें से Yeah. हर सब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा 15 से 16 क्वेश्चन आ सकते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट ऑफ विद द हाई यील्ड टॉपिक्स एंड देन कम टू द लो यील्ड टॉपिक्स and yeah, that's one of the way that you can crack AQ test. So, what resources and study material did you find the most helpful and most effective for your preparation strategies? Okay, so a lot of people ask me they have a lot of resources available, which one they should use. So I guide them that the resources that you find the most helpful and the most like easy to go, choose them, and then don't jump onto different resources. Stick to them and what any go through them in detail and complete the whole syllabus through FTB and PTB, then refer to these notes. Baki, if you want to solve past paper questions, then there is one website called Premad, which personally I used and it helped me a lot. And this is the only platform that I use. And it's not something that I'm lying about or being kind of promotive. It's just the fact that I'm stating that I will always use Premad and it helped me is the AQ test. Baki, there are other resources for math reasoning portion that there is one IKMC like the International Kangaroo Mathematic Competitions का जो 7-8 level के questions होते हैं you can solve that. Then there is College Panda की जो आपके पास book Stack है for text math, paper. yeah, उसकी जो book है for math reasoning that's very helpful. Then like आपके पास mocks available होते हैं pre-med में तो that helped me is this part. So, do you think that A levels paper thinking skills का एक होता है मेरे ख्याल से सब्जेक्ट उसके पास पेपर्स काम आते हैं? Someone said that too as well. Yes, that might help too because there's a portion in the AQ test which is related to this scientific reasoning. So this thinking skill वाला जो papers हैं उसको उसके solutions can help you is that part. Although that part isn't that difficult, but yes, again, the more you put in effort, the more successful you can be.
in the जो test हो रहा है. So, what was the most challenging part of the application process? Because the process is a lot bigger and हर यूनिवर्सिटी का सेम नहीं होता, सिर्फ आगा खान का ही इतना मतलब मेरिट बेस्ड है और सब कुछ, तो वो कैसा हुआ सब कुछ? Absolutely, like it's Aga Khan University is one of those universities. It's like it's not just the test which is difficult, but I think most of the steps that lead you to towards this admission are difficult. जिसमें से the question that you ask के कौन सबसे ज़्यादा difficult था, for me it was the interview, because a lot of seniors told me and a lot of people there told me that the interview isn't going to be easy and you need to really ace it to get in. And like obviously for me it was like a part of anxiousness and stressful part था मेरे लिए, because again अगर मैं ये clear करता ही तो आगे जाता, तो for me it's the interview that's the most challenging part of the AQU का जो पूरा whole process है, because they question you like differently, and sometimes they want you to like get under pressure, and वो मल्टीपल तरीके से जो है आपको क्वेश्चन करते हैं ताकि वो चेक कर सकेंगे कौन घबरा जाता है एंड कौन नहीं है. एज अ डॉक्टर यू शुड नॉट पैनिक इन सिचुएशन. सो या. सो व्हाट वाज योर प्रिपरेटरी स्ट्रेटजीज, लाइक प्रिपेयर कैसे करा एक इंटरव्यू के लिए, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कैसा आएगा, एंड अगर किसी को होता भी है तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस ही बता पाते हैं, मतलब जो आना होता है वो हमें अनएक्सपेक्टेड भी आ सकता है, तो कैसा रहा इंटरव्यू एंड दैट ऑल? Okay, absolutely. Like the interview, as I mentioned, it's one of the most difficult part of this journey. So इसके लिए I prepared from an online academy, and they helped me basically to आंसर क्वेश्चंस जो कि आउट ऑफ द बुक आ सकता है, बिकॉज जो क्वेश्चंस यानी यूजुअली आते हैं लाइक वाई एमबीबीएस एंड वाई आगा खान, उसकी तो प्रिपरेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर लेते हैं, बट दे बेसिकली हेल्प मी टू प्रिपेयर फॉर द क्वेश्चंस व्हिच कुड हैव कम आउट ऑफ द बॉक्स. तो उसके लिए उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया, एंड दे गेव मी कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू इट. जब आपने इतने आगे तक कर लिया है तो उससे आगे भी यू कैन डू इट. So with that, I was able to um, pass the interview, and like there were like a lot of my seniors who helped me. Even like there were a few batchmates जिनका पिछली मतलब IQ का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था. They helped me कि किस तरीके से सिचुएशन होती है, and that guidance basically helped me ace the interview. तो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर सकते हो इंटरव्यू डे का कैसा होता है, क्योंकि बहुत लोगों का होता है कि इंटरव्यू मुश्किल आते हैं, 2 घंटे का किसी को पता नहीं होता टाइम कितना होता है एंड दैट ऑल, तो मतलब जब बोर्ड सामने बैठा होता है तो सर फटी हुई होती है लोगों की, एंड बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं होती, तो मतलब क्या हो सकता है इसका? Okay, so basically there are like two things. एक ये है कि आपकी प्रेपरेशन नहीं है एंड देन आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एंड एक ये है कि आपकी प्रेपरेशन है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. तो इन बोथ ऑफ दीज केसेस देयर इज अ डिफरेंस कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो. आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो आप मोर कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो, आप ज्यादा कम स्टटर करोगे, आप ज्यादा जो है ना वो अच्छे आंसर्स दोगे. तो फॉर मी इट वाज कि आई वाज प्रिपेयर्ड एंड आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूंगा. एंड जिस जो इंटरव्यू था मेरा वो ये था कि लाइक देयर वर टू सेशंस ईच ऑफ 35 minutes. उसमें आई वाज आज मल्टीपल क्वेश्चंस, एंड अगर कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको एग्जांपल दूं तो दे वर लाइक क्वेश्चंस. मेरे इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस है बहुत सिंपलिस्टिक थे, तो अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि यू गॉट लकी कि आपको इस तरीके के सवाल नहीं मिले. बट अगर मैं कुछ आपको अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो वो ये थे लाइक कि देयर वाज एन इंटरव्यूअर. ही वाज बेसिकली आई थिंक फ्रॉम दुबई या सऊदी अरेबिया. ठीक है. ही आज माय फ्रेंड के ही शुड कन्विंस हिम कि फॉर एग्जाम्पल उनके जो हैं वो एक बेटा है और वो उनसे जिद कर रहा है कि उन्हें एक पेट दिलाया जाए. तो माय फ्रेंड शुड कन्विंस हिम विद पॉइंट्स कि वो वाकई में उसे पेट दिला दें. तो दिस कैन बी डन. फिर एआई के रिलेटेड बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस मिले कि व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू हैव रिलेटेड टू एआई. फिर कुछ लोगों को क्वेश्चंस मेडिकल एथिक्स की तरफ मिले. एंड या मेडिकल एथिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको कवर करना बहुत जरूरी है बिफोर AQ का टेस्ट. Like the major pillars of ethics and the responsibility of a doctor. तो was there any क्वेश्चन रिलेटेड टू हिपोक्रेटिक ओथ, या फिर जो हम ओथ लेते हैं डॉक्टर बनने से पहले उसके रिलेटेड कुछ था? Yes, absolutely. There was a question, and this is a question जो कि मेरे ख्याल में मस्ट है और हर
मेरे ख्याल में इंटरव्यू में पूछा जाता है, नॉट जस्ट आगा खान, मैनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू हिपोक्रेटिक ओथ, एंड उसके जो 4 फंडामेंटल पॉइंट्स है उसके बारे में भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो ऑल ऑफ दोज हु विल बी अपीयरिंग दिस ईयर फॉर AQ का इंटरव्यू, मेक श्योर यू हैव दिस नोटेड। ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कि आपको AQ पिक करे? उस कैंडिडेट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, मतलब एसेंशियली? ओके, सो बेसिकली AQ का जो बोर्ड होता है वो आपको मल्टीपल तरीके से ना जज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको एकेडमिक्स जो है वो सबमिट करवा चुके हैं, ठीक है, वो आपका ऑलरेडी जज हो चुका है, दैट्स वन क्राइटेरिया दैट दे मार्क ऑन। सही है। फिर दे वांट स्टूडेंट्स जो के ऑलराउंडर काइंड ऑफ, दे आर लाइक गुड एट मल्टीपल थिंग्स, दे आर गुड एट डिबेटिंग, दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, दे आर गुड एट लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स। तो फिर दे ओनली सेलेक्ट, वो जो है ना वाकई में उसको थ्रू द इंटरव्यू चेक कर लेते हैं डिफरेंट तरीके से, इतना आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं कि उनको सब वैसे ही पता लग जाता है। तो यस। अगर कोई आगा खान बोर्ड के बैकग्राउंड का है तो उसको क्या वो फेवर करते हैं? आगा खान बोर्ड के बैकग्राउंड का है तो कोई उसे फेवर करते हैं? ओके, इसके बारे में आई हैव हर्ड मल्टीपल थिंग्स। सही है, कि फेवर किया जाता है, एंड ऑब्वियसली दे फेवर देयर पीपल अ बिट, लाइक ऐसा नहीं है कि अगर उसका टेस्ट क्लियर नहीं तो टेस्ट पास करवा दें। हाँ, वंस ही हैज डन दी टेस्ट एंड इंटरव्यू तो थोड़ा बहुत उन्हें एज मिलता है, दैट्स ट्रू, और ये मैंने खुद भी देखा है। तो यस, इतना एज मिल जाता है, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर ऐसा कोई हो जिसकी परसेंटेज फॉर एग्जांपल 93 हो और वो सिर्फ एकेडमिक्स में है और एक्स्ट्रा करिकुलर वो नहीं करके आ रहा बैकग्राउंड से, तो हम्म। और एक है जो जिसकी परसेंटेज 87 86 85 तक है और वो उसके एकेडमिक्स के साथ साथ उसके एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत ज्यादा है, तो व्हाट्स लाइकली कि AQ कौन सा पिक करेगा, कौन सा कैंडिडेट पिक करेगा? मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली द कैंडिडेट विद स्ट्रॉन्ग ECAS एंड दैट जो 87% है, बिकॉज 87% इज अ वेरी गुड परसेंटेज ऑनेस्टली, एंड इसके पीछे जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जो ग्रेड्स लाने होते हैं, वी ऑल नो दैट। एंड obviously AQ will pick that 87% वाला person because इस साल द बैचमेट दैट आई हैड उनकी बेसिकली 87% थी, बट एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जैसे यू सेड 87%, उसकी ऑलमोस्ट 87 86% थी, ठीक है। तो ही हैड गुड एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स में भी था और मल्टीपल एक्टिविटीज में था, तो ही गॉट सेलेक्टेड। सही। सो अब हम कुछ पोस्ट सिलेक्शन और एडवाइसेस की बातें करेंगे कि मतलब इंटरव्यू के बाद क्या, जब आपको ऑफर लेटर रिसीव हुआ, जो डीन की एक वीडियो शेयर हुई थी जिसमें 100 कैंडिडेट्स के वो पेपर पे साइन कर रहे थे एंड दैट ऑल, और वो लेटर जब आपके हाथ में आया तो आपको कैसा लगा? हाउ डिड यू फील? अगेन इट वाज अ फीलिंग ऑफ लाइक इमोशनल फीलिंग थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट वाज के भाई लेट्स थैंक ऑलमाइटी कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया, एंड देन लाइक आई टोल्ड माय फ्रेंड्स, एंड अच्छा मैंने ये किया था कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ दोस्तों को लाइक मैसेज किया था जब व्हेन दी ईमेल रिसीव हुई थी, तो आई सेड कि मेरा नहीं हुआ क्लियर, ठीक है, तो दे गॉट अ बिट सरप्राइज एंड शॉक कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया, एंड देन आई टोल्ड देम, तो अगेन दे वर हैप्पी एंड आई वाज हैप्पी, the पेरेंट्स को बताया एंड ऑल दैट, तो अगेन इट्स अ फीलिंग। तो पेरेंट्स को पहले नहीं बताया आपने? हाँ हाँ, मैंने पेरेंट्स को पहले नहीं बताया था, बिकॉज अगेन मेरा ये होता है कि घर पे जो मेरे फादर होते हैं वो लेट आते हैं, तो वो रिजल्ट थोड़ा पहले आया था 9 10 बजे, तो उसकी वजह से फिर नहीं नहीं, रिजल्ट तो मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को 9 10 बजे भी आया था, तो मेरा जो फ्रेंड था और मैं, आई वॉज लाइक कंफ्यूज एंड परेशान होता भाई कि क्यों नहीं आया, सबका आ गया है। तो फिर आई गॉट द रिजल्ट एट ऑलमोस्ट 8 9, एंड इवन सुबह के वक्त भी लोगों को रिजल्ट आए हैं, तो यानी अगेन उनका सबर है कि दे वेटेड, बिकॉज इट्स ऑनेस्टली वेरी डिफिकल्ट। बाकी तो यस। सो अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी एडवाइसेस फॉर द स्टूडेंट्स जो 2025 में देंगे AQ टेस्ट। ओके, सो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी सबसे पहले एडवाइस ये है कि यू माइट हैव हर्ड कि भाई AQ का टेस्ट बहुत मुश्किल है, नहीं होता, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो जितने लोगों का इस मरतबा सिलेक्शन हुआ है वो कोई मार्क्स से नहीं आया, दे लाइक पीपल ऑफ दिस एंड दे वर लाइक, हाँ ये बात है कि दे हैड गुड ग्रेड, दे हैड गुड एक्स्ट्रा करिकुलर्स, उन्होंने लाइक विद कंपोजर उन जो इंटरव्यू है वो पास किया, और उनके पास वो क्वालिटीज थी, बट अगेन
अगर आपको भी टेस्ट क्लियर करना है तो उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दी इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको सीनियर्स दे रहे हैं। आई टोल्ड यू कि पीटीबी एंड एफटीबी आपने करनी है, पंजाब टैक्स बुक, फेडरल टैक्स बुक, एंड आपने अपने ऊपर बिलीव रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि भाई आई कैन डू इट। जब वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और परेशान नहीं होना। एंड रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी, दीज टू थिंग्स आर मस्ट। ये नहीं होंगी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक a Cuba test because the syllabus itself is very extensive. So you need to be regular, you need to be consistent. तो पेपर तो मैंने खुद भी दिया था और मैथ्स तो इजी था, बट द थिंग इज कि जो साइंस रीजनिंग थी उसमें साइंसेस ही थी मोस्टली। तो क्या मुश्किल क्वेश्चंस करने चाहिए साइंस रीजनिंग के लिए? um, अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैंने ऑनेस्टली बहुत ज्यादा कोई तैयारी नहीं की थी साइंस रीजनिंग की, ठीक है। इट वाज दी सब, मेरे सीनियर्स ने बताया था कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, इट्स दी मैथ पार्ट, बिकॉज अगेन आई डिडंट हैड मैथ्स इन ए लेवल, सही है। तो आई वाज अ बिट कंफ्यूज कि मैं क्लियर कर पाऊंगा मैथ्स का सेक्शन या नहीं, बट अगेन उसके लिए प्रैक्टिस की, एंड देन दी पेपर इटसेल्फ एज यू सेड कि उसके अंदर जो मैथ्स का पार्ट था वाजंट दैट डिफिकल्ट। एंड मजे की बात ये की 2024 के लिए कि साइंस अचीवमेंट वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, दैट वाज लाइक दी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछे थे इन साइंस अचीवमेंट रीजन। तो आपने इसकी वजह से फिर देखा भी था कि जो कट ऑफ्स हैं वो 63% एंड 85% रिस्पेक्टिवली साइंस अचीवमेंट एंड साइंस रीजनिंग वाले सेक्शन के बने थे। तो तो लाइक एक क्वेश्चन तो होगा कि प्रिडिक्शन कोई करोगे आप फॉर प्रेडिक्शन, 2025 मैथ्स कैसा आने वाला है और कट ऑफ क्या होगा? ओके। सो अगेन वही वाली बात है कि मैं अभी AQ के बोर्ड के अंदर जो पेपर बनाता है उसके अंदर तो मैं हूँ नहीं, तो अगेन आई कैन मेक अ वाइल्ड गेस। बट अगेन अगर हम इस साल के जो आपके पैटर्न है और इस साल का जो स्टैटिस्टिक्स है उसको रख के देखें तो 2025 वाला भी जो मैथ्स का पार्ट है वो इजी ही आएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी 85 है तो ज्यादा से ज्यादा कम हो सकता है और 83% हो जाएगा, बट आई डोंट सी कि भाई वो इससे ज्यादा कम होगा या इससे ज्यादा होगा, बिकॉज उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। एंड फॉर साइंस अचीवमेंट रीजन सेक्शन इट हैज बीन 63%, 60% हमेशा से इतना ही रहा है, तो इट विल रिमेन द सेम, 63, 64, दैट्स इट। किसी ऐसे का सिलेक्शन हुआ जो 85.1 पे या फिर ऐसे कोई करीब में था? 85.1 पे, लाइक 85.1 एग्रीगेट बॉर्डर ओवरऑल। बॉर्डर पासिंग मतलब जो मैथ्स में हाँ होता है। बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात ये है कि आपने ये सवाल पूछ लिया, मेरी एक बैचमेट थी, हम्म। मैंने उनसे उनसे जो है ना ये एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि उनके ना बहुत हायर मार्क्स या कट ऑफ से जो है ना पास हुआ होगा मैथ्स रीजनिंग या साइंस अचीवमेंट वाला रीजन। लेकिन जब मुझे पता लगा तो इट वाज मेरे ख्याल में 0.1% से शी पास। अब वो ये वीडियो अगर देख रही होंगी तो वो समझ गई होंगी कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद जो है देखा जाएगा। और मेरे बैचमेट में भी ऐसे बैचेस में ऐसे था कि 90% आए साइंसेस में बट मैथ्स नहीं हो पाया, विच इज वेरी हाई इन लाइक। हाँ। अब मैथ्स तो अगेन देखें, मोस्ट ऑफ द पीपल चूज मेडिकल, उनकी एक रीजन होती है ऑनेस्टली कि भाई दे डोंट वांट टू फर्दर गो एंड स्टडी मैथ्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो यहाँ पर आते हैं। अब वो AQ के टेस्ट के अंदर आके फंस जाते हैं कि भाई दोबारा मैथ्स करनी है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, बट अगेन उसके लिए प्रैक्टिस कर ली जाए तो बहुत ज्यादा कोई मसला होता नहीं है। सही। तो ये सजेस्ट करोगे कि कोई साइड ट्यूशन या फिर साइड कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लें, थोड़ी मैथ्स कर लें साथ साथ, एफएससी और एमडी कैट प्रेप जो हो रहे हैं मतलब? यस एब्सोल्युटली, लाइक देखें, दो तरीके हैं प्रिपरेशन करने की। एक ये कि इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू फील कि भाई आप अपने आप को कंपोजर के साथ जो है AQ के टेस्ट तक प्रिपेयर कर लोगे तो आप सेल्फ कर लो। लेकिन इफ यू फील कि भाई नहीं हो पाएगा एंड यू नीड समवन टू गाइड एंड लाइक टेल यू कि आज ये करो एंड कंसिस्टेंट रहो, तो फिर आप अकेडमी ज्वाइन कर लो, प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, देयर आर मल्टीपल गुड अकेडमीज, लाइक मल्टीपल गुड प्लेटफॉर्म्स। और अगेन वही वाली बात मैंने कही कि एट द एंड ऑफ द डे आपने पास पेपर्स करने हैं, पास पेपर किए बगैर जाएंगे तो फिर यू विल पे फॉर इट। तो पास पेपर आपने करना है। तो एक मिनट, इफ यू कुड गो बैक एंड चेंज समथिंग अबाउट योर प्रिपरेशन तो वो क्या होगा? ओके, सो बेसिकली वो चीज ये होगी कि फॉर एग्जांपल मैंने बहुत ज्यादा पैनिक किया था कि जो है जो लो यील्ड टॉपिक्स हैं वो आ गए तो क्या होगा एंड ये सब कुछ। बट उस टाइम पे आई वुड हैव नोन ये वाली चीज
इतनी अच्छी तरीके से कि 16 क्वेश्चंस ही तो आने हैं, उनमें से हाई यील्ड टॉपिक्स कर लो तो बाकी 5-6 सवाल आपके पास बच जाते हैं। एंड यू हैव अ लेवरेज ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 18 to 19 क्वेश्चंस इन साइंस अचीवमेंट रीजन सेक्शन के, आप उसको छोड़ सकते हो बिकॉज अगेन उसके अंदर आपको सिर्फ 63% चाहिए होता है टू क्लियर। मैक्स आप 65% का एस्टिमेट लगा लो तो फिर भी आपके पास ऑलमोस्ट 15 से 16 क्वेश्चन बचते हैं दैट यू कैन लीव। ठीक है। और ओवरऑल 100 में से आपको 100 क्वेश्चन तो सही करने होते नहीं है, एंड नेगेटिव मार्किंग को देखना होता है। तो इफ आई कुड हैव लाइक ज्यादा गाइडेंस होती तो हो सकता है कि मैं और ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाता, बट यस दैट्स द थिंग दैट मुझे लगता है कि मैं और बेहतर कर पाता और ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता। So yeah, any final tips for managing stress during the preparation time? यस एब्सोल्युटली। लाइक देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन स्ट्रेस और एंजाइटी जब होती है, वंस यू फील कि भाई आपकी तैयारी नहीं हुई है एंड आप पैनिक करते हो, जब ही ये सारी कंडीशंस होती हैं। वरना आई नो दे लाइक देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस, बट वो फिर बहुत ज्यादा नहीं होती है। विद वंस यू गेट इनटू द हॉल एंड थोड़ा बहुत टाइम गुजरता है तो वो यानी जो स्ट्रेस और एंजाइटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो द बेस्ट वे टू लाइक बी स्ट्रेसफुल एंड रिलैक्स इज कि आप सही पेस के साथ, अच्छे पेस के साथ चीजों को कवर करते रहो, रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, ताकि बाद में बहुत ज्यादा चीजें बच ना जाए, फिर आप पैनिक ना करो। एंड दिस इज द बेस्ट टेक्निक। बाकी स्टे कनेक्टेड विद योर गॉड एंड दोस्तों के साथ भी बात करते रहें, ताकि ऐसा ना हो कि आप कुछ चीजें होती हैं जो कि लूप में रहने से पता लगती हैं। एंड इन पाकिस्तान, मैं जब इस पूरे जर्नी से गुजरा तो आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि भाई इन्फॉर्मेशन का बहुत मसला है। एक इन्फॉर्मेशन एंड दूसरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो स्टे कनेक्टेड विद योर फ्रेंड, उससे आप जो है एक काइंड ऑफ मोटिवेटेड भी रहते हो, उनके साथ कंपटीशन रखो कि किसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो मल्टीपल थिंग्स के थ्रू आप जो है अपना स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है मैनेज कर सकते हो। AKU तो अपनी जगह पर सही है, बट जो गवर्नमेंट का सारा प्रोसेस है वो किसी बंदे को भी आज तक समझ नहीं आया। सही है, सीधी बात मैं भी बता रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आया। अभी मैं खुद आया हूँ इसमें तो कुछ समझ आ रहा है थोड़ा, लेकिन इतना मतलब क्यों करा हुआ है ऐसा, समझ नहीं अब आता। इस मरतबा लेकिन और ज्यादा उन्होंने चीजों को कॉम्प्लेक्स कर दिया है। लाइक द वे a lot of students were messaging mentors and different people कि भाई फॉर्म का बता दो, because they have like जिस तरीके से उन्होंने फॉर्म बनाया है उसमें ए लेवल वाले के लिए और जो इंटर वाले के लिए उसके दरमियान क्लियर डिफरेंस है कि भाई आप उसको ए लेवल वाले ओ लेवल वाले बंदे को पता ही नहीं है कि फॉर्म के अंदर लिखना क्या है, सीट नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है। तो जब आप कोई चीज अपलोड करो तो उसके साथ गाइडेंस भी जो है ना वो दें। ऐसा नहीं आपने चीज अपलोड कर दी है बाकी जो है वो अल्लाह तवक्कल छोड़ दिया कि उस बच्चे ने क्या भरा है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई एंड आई होप सो कि भाई ये जो पूरा सिस्टम है वो थोड़ा आसान हो। एज लाइक AQ ने भी ये सारी चीजें की ही हैं हमारे साथ, बट अगेन वो इतना ज्यादा स्ट्रेस और इतना ज्यादा जो है ना वो उसकी वजह से खुआरी नहीं हुई। तो या तो यार अगर कोई 2024 में क्लियर नहीं कर पाया और बेयर मार्जिन से रह गया एंड ही वांट्स टू इम्प्रूव, तो क्या मार्जिन है? यस एब्सोल्युटली। लाइक मैं ये बोलूंगा कि इफ एनीवन वांट्स टू इम्प्रूव फॉर आगा खान यूनिवर्सिटी, वर्थ इट है। सही है। इफ कोई मुझे पूछे कि क्या मैं गवर्नमेंट या पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए इम्प्रूव करूं, तो मैं बोलूंगा नहीं। उसकी सिंपल सी रीजन ये है कि यहाँ पर जो पॉलिसीज चेंज का मसला है ना, कि कभी नेशनल एमडी कैट हो रहा है, कभी प्रोफेशनल एमडी कैट हो रहा है, कभी बोर्ड एमडी कैट हो ही नहीं रहा, उसकी वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एंड आपको पता ही नहीं होता कि इस मरतबा आपका क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट मरतबा भी क्लियर होगा, या इस मरतबा क्लियर नहीं हुआ तो अगले मरतबा होगा। इट्स टू मच लाइक कियोस टाइप। तो AQ अगर आपको रिपीट करना है, AQ का टेस्ट दोबारा देना है, वर्थ इट है, गो फॉर इट। और अगर कोई 2025 में देखकर फ्रेशर या फिर जो इम्प्रूव कर रहा है वो, अगर उसका नहीं होता तो क्या वो डिप्रेस हो जाए, या फिर वो एमडी कैट के लिए और ज़्यादा मेहनत करे और गवर्नमेंट सीट जो है अपनी सिक्योर कर ले? ओके, तो ये आई हैव मेट बोथ टाइप ऑफ पीपल। एक वो जिनका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ और उन्हें गवर्नमेंट की सीट को बहुत ज्यादा मेहनत करके ले लिया, एंड अगेन अब वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। एक वो जिन्होंने उनके दिमाग में शुरू से AQ था, AQ AQ AQ, तो उन्हें AQ ही चाहिए था। अब उनका टेस्ट क्लियर नहीं भी हुआ तो नाउ दे आर एमिंग फॉर AQ नेक्स्ट ईयर। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर पैशन, इट डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो इफ एक पहली मरतबा आपको गाइडेंस का इशू था या कोई भी इशू था तो आप नेक्स्ट मरतबा मेक श्योर करोगे यू गेट इन। एंड आई हैव मल्टीपल एग्जांपल्स अभी मेरे बैच के अंदर भी कि दे इम्प्रूव्ड एंड अभी वो
माशाल्लाह से आगा खान के अंदर। तो मैंने भी रिसेंटली अभी शार्क टैंक का पिच देखा प्रीमेट डॉट पीके का, तो उसमें फाउंडर ने भी बताया, को फाउंडर हसनैन मनकानी, तो उन्होंने गैप ईयर में सब कुछ अपने फ्रेंड के साथ सोचा एंड प्रीमेट डॉट पीके बनाया। उसके बाद उन्होंने फिर से एक यू दिया एंड ही क्लियर्ड। तो क्या ये एग्जांपल है लोगों के लिए? एब्सोल्युटली, लाइक जैसे आपने अभी एग्जांपल दी हसनैन भाई की, तो दे लाइक मल्टीपल एग्जांपल्स। उनकी एग्जांपल उन्होंने आकर जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन की कि हाउ गाइडेंस इज एसेंशियल। जैसे द वे हिज फ्रेंड गाइडेड हिम, हमारे पास ऐसी गाइडेंस बहुत मुश्किल से मिल जाती है। तो उनके पास वो गाइडेंस थी, वो गाइडेंस मिली, उन्होंने उनको जो है सारी चीजों के बारे में बताया कि व्हाट्स द रूट, व्हाट्स द जर्नी, व्हाट, यानी आपको किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, एंड देन ही क्रैक्ड इट। एंड अगेन वही बात होती है इंटरेस्ट एंड उसकी पैशन की। तो दोबारा दिया, दोबारा मेहनत की, एंड नाउ ही इज इन फिफ्थ ईयर ऑलमोस्ट एमबीबीएस में। तो क्या लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि यूएस एमएलडी मैचेस मिलते हैं आगा खान से ज्यादा होते हैं, किंग एडवर्ड से ज्यादा होते हैं, डाउ मेडिकल कॉलेज से ज्यादा होते हैं? आगे का प्रोसेस क्या होता है? मतलब देखो, जो आगा खान से करता है वो ज्यादातर बाहर ही जाता है, या फिर लेक्चरर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, ऐसा भी होता है, किसी हायर पोजीशन पे चला जाता है। तो बिकॉज इट्स सर्टिफाइड ना, पूरे वर्ल्ड वाइड सर्टिफाइड है। तो क्या इस पे आपको लगे कुछ? जहां तक मैंने ये सुना है, जैसे यू सेड के लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लाइक डूइंग एमबीबीएस, वो मेनली आफ्टर एमबीबीएस करने के बाद पाकिस्तान में तो रहते नहीं है। ठीक है, उनके पाँव नहीं हम्म। टिकते, फिर वो अमेरिका, यूके, मल्टीपल जगहों पे चले जाते हैं। प्लैब देंगे तो यूके, आपके पास जो है यूएस एमडी देंगे तो यूएस। एंड यस, एक्यू वालों के मैचेस ज्यादा मिल जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि बहुत आसानी से मिल जाते हैं, मुश्किल लगती है लेकिन आसानी से मिल जाते हैं। बट ओवरऑल मैचेस का ऑल्दो काफी ज्यादा इशू है। डाउ मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी मैच का इशू फेस करना पड़ता है, किंग एडवर्ड वाले को भी फेस करना पड़ता है। एंड अगेन बहुत ज्यादा मुझे इस तरीके मुझे यानी वाले कमेंट्स मिलते हैं कि किंग एडवर्ड वर्सेस एक यू कौन बेटर है। तो अगेन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक पब्लिक कॉलेज है, एक प्राइवेट कॉलेज है, तो अगेन दोनों के अपने डिफरेंट पार्ट्स हैं। बट अभी रिसेंटली देखा जाए तो 94% कुछ कट ऑफ बना था, और उस पे भी हो नहीं रहा है उसमें किंग एडवर्ड में। तो हाँ, डेफिनेटली उसका भी एक लेवल है। बट आगा खान तो प्राइवेट में टॉप पर है और टॉप 100 में आती है, तो व्हाई नॉट? सो एनी क्लोजिंग रिमार्क्स जो आप, मतलब लास्ट टिप्स देना चाहोगे? ओके, सो लास्ट टिप्स मेरी सब कैंडिडेट्स को जो एक टेस्ट के लिए अपेयर होंगे उनको ये होगी कि अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो तो जो आपके रिलेटिव्स कह रहे हैं, जो आपको लोग टॉन्ट कर रहे हैं, उन्हें कहने दें। द बेस्ट आंसर इज कि आप अपने इस पूरे फेज के अंदर हार्ड वर्क करो, एंड आपका जो रिजल्ट है वो उनको आंसर देगा। ठीक है, तो आई हैव मल्टीपल केसेस तरीके के बोलते थे नहीं होगा, पहली मर्तबा नहीं होगा, दूसरी मर्तबा क्या होगा। तो जस्ट आपको अपने बारे में ज्यादा बेहतर पता है, यू कैन पुट दी एफर्ट्स, एंड इफ आपकी एफर्ट्स जो हैं वो इस लेवल की होंगी कि वो वाकई में बहुत अच्छी होंगी, तो फिर ऑब्वियसली यू विल गेट इन। तो यू डोंट नीड टू फोकस ऑन व्हाट अदर्स से। जो आपको करना है, जो आपका पैशन है, फॉलो दैट एंड यू विल एंड अप द इन द इंस्टीट्यूशन दैट यू वांट। जैसे अगर कोई एक ही मिस कर देता है फॉर एग्जांपल, तो मतलब उसको डिप्रेस तो नहीं होना चाहिए ना नहीं इधर के लिए? तो क्या हो? नहीं, डिप्रेस होने वाली कोई बात नहीं। अगेन इट्स समथिंग जो कि बहुत सारे लोग, अगर आपने देखा हो कि दे इम्प्रूव। ठीक है, तो अगर आपको पहली मरतबा में एक क्यू नहीं मिला तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी दुनिया खत्म हो गई या दोबारा कोई ऑप्शन नहीं है। एक क्यू वालों ने दोबारा ऑप्शन उस यानी टेस्ट देने के लिए इसलिए दिया हुआ है बिकॉज दे नो के बहुत सारे लोग करते हैं, और पहले अटेम्प्ट में हर कोई इतना, हर किसी के पास वो लेवल की स्किल्स नहीं होती हैं, या वो गाइडेंस पहली मरतबा में उन्हें नहीं पता हो, नहीं मिलती, जैसे वो जो है एक यू पास कर लें। तो अगेन डिप्रेस होने वाली कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, और लाइक आप ज्यादा आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे डिप्रेस होने वाली कोई बात नहीं है। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। यहाँ इतनी गाइडेंस थी हमारे पास, एंड होपफुली वील एबल टू गाइड यू गाइस। और जितनी तैयारी हो सकती है फुल प्रेशर के साथ करो, और अभी प्रेशर ले सकते हो तो ले लो, बाद में नहीं लेना। टेस्ट के वक्त इजी होकर टेस्ट देना, बिकॉज जेन्युइनली साइंसेस इजी होगा। मैथ्स में थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट हाँ, हो जाएगा।
इतना मुश्किल नहीं होता। बट जब वो AKU के अनाउंसमेंट टीचर ने आखिरी में हमें ये बात बोली कि बच्चों कैसा लगा पेपर, मतलब उससे पता चल रहा था कि कट ऑफ आ जाने वाला है। So that's it for this video. Like, comment, share, and subscribe. And I'm mentioning Josefa's channel in the description below. Make sure to subscribe his channel and we'll collaborate in other videos as well.